Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. चलो स्टार्ट करें 23 students are already there. I think I must start with the attendance. Till the time rest of the 3 4 students who are left will join. Attendance. Yes, Ashish. Ashish just joined. Ashish. Mridul Kashyap. Mridul Kashyap. Nikita Sharma. Yes, ma'am. Nishant Sharma. Yes, ma'am. Nishant Thakur. Nishant Thakur. Nitish Chandel. Rachit Dani. Yes, ma'am. Radhika. Present, ma'am. Rajvinder. Present, ma'am. Ruplin. Present, ma'am. Sandeep Kumar. Sandeep Kumar. Tangum. Present, ma'am. Vijayant. Yes. Okay. Yashas. Yashas Kumar. Lavish. Present, ma'am. पीयूष भंडारी. अभी आया था पीयूष. जसप्रीत. Present, ma'am. हार्दिक. हार्दिक. हार्दिक नहीं. औरव. निकुंज. रोहित. ओवैस. रोहित Present, है. ma'am. Yes, ma'am. Rohit present. ओह, रोहित आज कहाँ से आ गए बेटा? याद आ गई आपको? मैम फर्स्ट क्लास भी लगाई थी. रोहित. ओवैस. Present, ma'am. शिवम गुप्ता. Present, ma'am. शिवांग मूंगा. Present, ma'am. धनंजय. Present, ma'am. पायल. निकिता गुप्ता. पायल है. निकिता गुप्ता. Present, ma'am. प्रिया. Present, ma'am. ईशान कुमार. Present, ma'am. विक्रांत. विक्रांत कन्वर. आया था विक्रांत तो. विक्रांत. यस. अरीना. Yes, ma'am. हाँ, और अब मैं फिर से बोल रही हूँ. यशस्व है. नहीं. संदीप कुमार. Yes, ma'am, present. I'm present. ठीक है, ठीक है, ठीक है. नीतीश चंदेल. नीतीश आया था. हाँ. निशान ठाकुर. हार्दिक आ गया है. निशान ठाकुर नहीं है. मृदुल कश्यप. मृदुल कश्यप भी नहीं है. ठीक है. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं. आई शेयर माई स्क्रीन.
हमने कल यहाँ तक किया था बच्चे, जैक डायरे नहीं किया था। सो नाउ कम फॉर जैक डायरे। जैक डायरे क्या होता है? एनीवन नोज अबाउट जैक डायरे? है कोई? मैम इसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स डिफरेंट होते हैं। Yes, we can have a different rows and different columns. इसका मतलब ये नहीं है कि रोज और कॉलम्स डिफरेंट है तो 2 by 3 के मैट्रिक्स भी जैक डायरे है, नहीं। इट मीन्स कि रो 0 में नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हो सकते हैं और रो 1 में नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हो सकते हैं। लाइक आई मेक यू एन एग्जांपल, सी द आउटपुट ऑफ दिस एग्जांपल here. There are 3 rows but different number of columns. First row have 3 columns, second row have 4 columns, third row have 2 columns. So this is jagged array. अब ये हमने किया कैसे है, कैसे हमने implement किया? See, we have initialized declare the array here. We mentioned the number of rows fixed as 3, but we have left the columns. We have taken as an empty opening and closing bracket. We didn't mention any numeric value here because it's a jagged array. So how we are initializing the column? Say we go for array of 0. Array of 0 means we are initializing the first row, or we can say row 0. So that in row 0 we have the 3 columns. In row 1 we have 4 columns. In row 2 we have 2 columns. Then putting the values, what we are doing, first loop for the number of row and then second for the number of column. So here for number of columns what we have taken, we didn't take array dot length, we have taken array of I dot length because the length is different for each and every row. That's why we have mentioned here dot length, a array of I dot length. एंड AIJ में हमने काउंट प्लस प्लस, ये सिर्फ इसलिए कि मैंने एक रैंडम वैल्यूज 1 2 3 4 5 डाली हैं, इसलिए ये ऐसे हो रहा है। Similarly, for printing also we have done the same thing. For number of row, I is equal to 0, I less than array length I plus plus. For j is equal to 0, j less than array of I dot length j plus plus. And इस फॉर्म में हम आउटपुट करा रहे हैं। This is for the new line, println, just to print on the next line. Like in the array, we are printing one row, then we go to the next line, println, next line, then println, next line. Now come to an example. Addition of 2 matrices, you know. कोई मुझे इसमें complexity बताएगा कितनी आएगी? How would you calculate the complexity? कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है इसकी? 6, ठीक है, order of 6 for this particular program, it is order of 6. If we talked about n and m in generalized term, then n into m. yes, n into m. Good, it is n into m. Now start with this work. ये अभी क्लास में करना है, होमवर्क नहीं क्लास वर्क है ये। अभी यहाँ पर ये वाला प्रोग्राम बनाना है, इसको करना कैसे है पहले इसे पढ़ो। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा पहले आप में से? नहीं तो देन आई विल एक्सप्लेन द प्रोग्राम। क्या है, करना क्या है इसमें, पढ़ लो पहले इसे। हाँ जी, राधिका, 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 रूपलीन। हाँ राधिका, बच्चे बता सकते हो क्या करना है? यस मैम। बताओ। मैम इसमें 2 स्टेट्स के टेम्परेचर को वो इनपुट करानी है, फिर उसमें से हाईएस्ट और लोएस्ट प्रिंट कराना है 2 सिटीज की। नहीं,
थोड़ा थोड़ा ठीक है, पूरा ठीक नहीं है। और एनीवन एल्स? संगम? मैम इसमें एक 2D एरे लेना है टेम्परेचर नाम का, जिसमें कि रोज में हमारे सिटीज आएंगे एंड कॉलम्स में हमारे डेज आएंगे, जिसमें पर्टिकुलर सिटी में कॉरेस्पॉन्डिंग 3 डेज में जितने भी मैक्सिमम टेम्परेचर होंगे वो स्टोर्ड रहेंगे, और उनमें से हम लोगों को हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सिटी और डे प्रिंट करवाना है। वेरी गुड, दैट्स व्हाट आई वांट। जो उसने लास्ट में स्टेटमेंट बोली है बच्चे, उस पर ध्यान दो। राधिका, आपने भी ऑलमोस्ट ठीक था, लेकिन द लास्ट स्टेटमेंट, द आंसर वाज रॉन्ग। क्या था? आपने कहा हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। ठीक है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, बट यू डिडंट गो विद द स्टेटमेंट फाइंड द सिटी एंड डे कॉरस्पॉन्डिंग टू। हमें क्या करना है बच्चे, हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली कौन सी सिटी है और कौन सा डे है वो प्रिंट कराना है, ना कि हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर प्रिंट कराना है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, करना कैसे है। आपको एक 2/3 की मैट्रिक्स लेनी है, 2/3 की मैट्रिक्स। वाई आई एम मेंशनिंग 2/3 की मैट्रिक्स? बिकॉज इन रोज यू कुड टेक द सिटीज एंड इन कॉलम्स यू कुड टेक अ डेज, और वाइस वर्सा 3/2 भी ले सकते हो, वो आपकी विश है। इट्स नॉट कंपल्सरी यू हैव टू टेक 2/3, यू कुड टेक 3/2 ऑल्सो। सो रोज जो है वो सिटीज को रिप्रेजेंट करेंगी, कॉलम्स जो हैं वो डेज को रिप्रेजेंट करेंगे। 2/3 की मैट्रिक्स है और उसमें जो वैल्यू एंटर करोगे वो टेम्परेचर होगा। देन व्हाट वी हैव टू डू, you have to find out the maximum temperature and the minimum temperature in the complete matrix. अब जब आप मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर प्रिंट निकाल लोगे तो प्रिंट क्या चीज़ करानी है, कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट टेम्परेचर यू हैव टू प्रिंट द वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, rather than the temperature you have to print the values of I and J. See what you have to do. See for example, मान लो ये मैट्रिक्स है, ये 29, 45, 25, 18, 23, 34, ये मैंने टेम्परेचर की वैल्यूज एंटर की हैं। 2/3 की मैट्रिक्स है। मान लो रो 0 के लिए ये वैल्यूज हैं, यानी कि सिटी 0 के लिए डे 1 का ये टेम्परेचर था, डे 2 का ये टेम्परेचर था, डे 3 का ये टेम्परेचर था। ऐसे ही सिटी 1 के लिए डे 1 का ये टेम्परेचर था, डे 2 का ये टेम्परेचर था, डे 3 का ये टेम्परेचर था। अब आपको क्या करना है, इसमें से पूरी मैट्रिक्स में से मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो मैक्सिमम क्या है इस पूरी मैट्रिक्स में? संदीप, संदीप? मैम डे 2 45 सिटी 45, हाँ, सिटी 0 डे 2। प्रिंट क्या होना चाहिए? सिटी 0 डे 2, ये प्रिंट कराना है मुझे। रचित, रचित Yes, ma'am. अब मुझे Yes, बताओ ma'am. मिनिमम क्या है? 18. मिनिमम 18, तो प्रिंट क्या होना चाहिए? सिटी 1 City 2. डे 1, हाँ सिटी 2 ले लो, Yes, ma'am. सिटी 2 एंड डे 1, ये प्रिंट होना चाहिए। Yes, सो ma'am. अब प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करो। आई विल आस्क एनीवन टू शेयर हिज स्क्रीन, इज और हर स्क्रीन। ओके, मैं यहाँ पर क्वेश्चन विजिबल कर देती हूँ आपको। ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो है ये करना है, ये बनाना स्टार्ट करो बच्चे आप लोग। मैं किसी को भी कहूँगी कि अपनी स्क्रीन शेयर करें। Shall I stop sharing my screen? I think so question is understandable by you all. कोई है जिसको नहीं समझ में आया हो बेटा? क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो कोई है? Anyone? Anyone who didn't understand the question? नहीं? ठीक है बच्चे, बनाओ फिर ये क्वेश्चन इतने। मैं फिर I just ask you after 5 minutes and I will ask anyone to share his or her screen. Start making this program. Use any online compiler.
किसी का हुआ? हाँ जी। मैम फॉर मैक्सिमम टेम्परेचर तो हो गया, मिनिमम टेम्परेचर वाला कर रहे हैं। अच्छा, चलो प्रिया के अलावा चाहिए मुझे कोई और। संगम, शिवम, ओवैस, कितना हुआ? अरीना, हाँ ओवैस बोलो। मैम रहता है अभी थोड़ा। संगम का रहता है। अरीना क्या हुआ? प्रिया नहीं शेयर करेगी, तुम में से कोई शेयर करेगा? जितना हुआ है उतना शेयर करवाऊंगी। जस्ट 3 मिनट्स मोर कर लो। इसका हुआ? संगम यहाँ डालने को नहीं कहा था, मैंने कहा था स्क्रीन शेयर करनी है। अपनी स्क्रीन शेयर करो। मैम मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मैं फोन पे ले रहा हूँ मैम क्लास। इंट ए 12 30 45, चलो डेटा कुछ भी है। इंट मिनिमम मैक्स में ए ज़ीरो ज़ीरो, अच्छा मिनसिटी ज़ीरो, मिनडे ज़ीरो, मैक्सिटी ज़ीरो, ज़ीरो, मिनिमम में डे +1, मैक्स इज लेस देन ए आई जे। ठीक है, लॉजिक तो ठीक जा रहा है। संदीप कितना हुआ? संगम ठीक जा रहा है, लॉजिक ठीक है। मैम मैम इतना ही हुआ है। सही है, आउटपुट आ रहा है मैम इस पे। हाँ, इसका लॉजिक संगम का तो ठीक है। संदीप तुम्हारा जरा स्क्रीन शेयर करो, कितना किया दिखाओ।
हाँ, क्या हुआ? मैम इसमें स्क्रीन शेयर का ऑप्शन मैम किधर है? प्रेजेंट नाउ, राइट साइड पर देखो, नीचे प्रेजेंट नाउ। जहाँ पर माइक है, जहाँ पर आपका कैमरा है, उसकी राइट में देखो टर्न ऑन ऑप्शंस और प्रेजेंट नाउ। प्रेजेंट नाउ पर क्लिक करो, योर एंटायर स्क्रीन। हाँ, वेट मैम एक मिनट। स्क्रीन योर एंटायर स्क्रीन। मैम नहीं हो रही, शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा मैम, क्लिक नहीं हो रहा शेयर पे। प्रेजेंट नाउ पर क्लिक करो, योर एंटायर स्क्रीन पे क्लिक करो। शेयर पे क्लिक नहीं हो रहा। कॉपी करो इसमें, चैट विंडो में जितना किया है। अरीना कितना हुआ है? अरीना, मैम कर रही हूँ, हाँ कर रही हूँ मैम। कर रही हूँ बेटा। कितनी देर लगानी है एक कोड में? इट्स 15 मिनट्स। इतना इजी कोड है बच्चे, कोई टिपिकल है ही नहीं। निकिता, निकिता गुप्ता, निकिता, निकिता। बच्चे वो लॉजिक देख लिया था अब? यस मैम। अ- अभी किसका हो गया है प्रिया के अलावा, जो अपनी स्क्रीन शेयर कर कर बता सकता है? Nikita, then you have to share your screen and the question that you were asking me on your mail. We will discuss that question. Okay, Nikita? Ma'am, I have not sent any question on mail. You didn't send me. Nikita has sent me. Na, ek minute, 1 second. Ma'am, there's another Nikita Sharma. No, Nikita Gupta. What question, ma'am? One I second, one asked you that question. second. One Nikita second. Sharma. Nikita Sharma. Yeah, Nikita Sharma have asked. Nikita, so your doubt has cleared? No, but I have not tried yet. Okay. Till then, what you have done, you have to share with us in the class. Okay. We will Yes, discuss the same question in the class. Okay. Right okay. now, who is going to share your screen? Who is going to share? संदीप ने भी चैट विंडो में डाल दिया। चैट विंडो में नहीं डालने को कह रही हूँ मैं कह रही हूँ अपनी स्क्रीन शेयर कर कर एक्सप्लेन करो। संदीप, मैम मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मैम, पता नहीं। सिमगुम की नहीं हो रही, संदीप की नहीं हो रही, किसकी होगी फिर? किसी की स्क्रीन नहीं शेयर हो रही? प्रिया, हैव यू डन? मैम मैक्सिमम वाला हो चुका है बट मिनिमम हो नहीं रहा। लाओ स्क्रीन शेयर करो, वी सी दैट। यस मैम, एक मिनट बस। मैम एक मिनट कर रही हूँ उसको।
तुमने कहीं और, तुमने पहले फोन से ज्वाइन किया हुआ था? मैम फोन से किया हुआ था बट अभी मैंने लैपटॉप पे कनेक्ट हाँ किया है, हाँ हाँ। बट समझ नहीं आ रहा शेयर कहाँ से होगी। बेटा नीचे जहाँ माइक आता है वहां पर देखो, राइट में प्रेजेंट नाउ की ऑप्शन है लिखी हुई। जहाँ माइक को ऑन ऑफ करते हैं वहाँ प्रेजेंट नाउ की ऑप्शन है, उस पर क्लिक करो। प्रेजेंट नाउ की ऑप्शन पे क्लिक करो। मैम वहाँ Your- पे शेयर और कैंसिल का ऑप्शन तो आ रहा है, पा रहे। उसमें मैम योर आपने एंटायर, यस मैम इंटायर स्क्रीन पे क्लिक किया, उसके हाँ बाद नीचे में शेयर और कैंसिल का ऑप्शन है, कैंसिल क्लिकेबल है हाँ बट हाँ शेयर। हाँ हाँ, सुनो 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 सुनो, उसके केस में ना शेयर और कैंसिल की जो ऑप्शन आ रही है, वो जो लेफ्ट में स्क्रीन बनी आ रही है उस पर क्लिक करो। पहले ऊपर जो स्क्रीन बनी आ रही है उस पर क्लिक करो, वो सेलेक्ट करो। मैम हो रहा है। हाँ, अब ओपन करो बच्चे कोड, थोड़ा सा साइज इंक्रीज करो इसका। लेट अस सी व्हाट यू हैव डन। इसको विंडो को बेटा मैक्सिमम कर दो। मैक्सिमम ही है। नहीं बच्चे, मैक्सिमाइज का बटन देखो नहीं है, मैक्सिमाइज का बटन क्लिक करो उसे। हाँ, फोन साइज इंक्रीज कर दो। हाँ हाँ ठीक है। तुमने इनपुट करवाया अच्छा स्कैनर से, ठीक है। टेम्परेचर मैक्स मिन, मैक्स और मिन को इनिशियलाइज किससे किया है? मैम 0 0। हाँ तो बच्चा मिनिमम क्यों नहीं आ रहा? नहीं, टेम्प 0 0 से किया है ना? यस मैम। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट डाला है। मैम यहाँ पे स्कैन करवा दिया, हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब मैक्स फाइंड किया हाँ तो ये ठीक है। मैक्सिमम तो सही प्रिंट कर रहा, बट हाँ, सेम चीज मिनिमम के लिए गलत आ रहा। मैम आउटपुट इज देयर दिखाते हैं। 8 minute is equal to 0 0 less than minimum. For maximum cities 2 days, 3 for minimum. टेम्परेचर सिटी 0 days 0। अच्छा 0 0 जो तुमने पहले डाली हुई है, मिनिमम यस को भी वही तो नहीं है बेटा? मिनिमम वही तो है तुम्हारी, मैम देखो तो मिनिमम से। में ये, यस मैम बट मिनिमम गलत आ रहा है। नहीं, अच्छा +1 नहीं हो रहा। यस इफ मैम। min is greater than temp IT तो min is equal, min is less than, हाँ हाँ ठीक है, min is greater than temp IJ, temp less than 0 IJ, min day, min city। ऊपर करो, नीचे आउटपुट विंडो बंद कर दो। मिनिमम के लिए ये किया है। min day, min city 0, for loop greater than temp, टेम्प में ऊपर करना, कहीं ऊपर टेम्प में कुछ और चेंजेस तो नहीं किए हैं? नहीं किए। ठीक है, फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको? लॉजिक तो ठीक लिख रहा है। सिटी for if
की ब्रैकेट बंद की है, तुमने उस फॉर की है, उस फॉर की है। चलो ऐसा करो, इस कोड को ना मुझे मेल कर दो, मैं ओके देख लेती हूँ। ठीक है, अभी एक बार में सारा कोड दिख भी नहीं रहा, तुम इस कोड को मुझे मेल कर दो, आई विल चेक। ओके मैम। ओके, निकिता, निकिता शर्मा, बच्चे Yes, आपने जो ma'am. क्वेश्चन था ना जरा वो शेयर करो, कोड क्वेश्चन का क्वेश्चन है ना वो, Yes. हाँ शेयर करो। निकिता का एक क्वेश्चन था बेटा, आप सब लोग सुनो। उसका क्वेश्चन है जो कोड क्वेश्चन पे है, टू फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। प्रिया अपना माइक बेटा करो, म्यूट करो प्रिया। हाँ, निकिता का क्वेश्चन था कि टू फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द लिस्ट। ओके, तो मुझे लविश बताएगा कैसे फाइंड आउट करते हैं वैसे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द लिस्ट। कैसे करते हैं लविश? जसप्रीत, मैम एरे को सॉर्ट करके वेरी फिर गुड, एरे ऑफ n-2 प्रिंट करवा दो। ठीक है। अब निकिता का क्वेश्चन था कि अगर ये सॉर्ट करा दें, ठीक है, अब मेरे एरे में जो एलिमेंट्स की एंट्री हो रही है, मान लो मेरे एरे जो है वो सिर्फ 5 एलिमेंट्स का है, ठीक है, और मैंने एरे जो एंटर किया है वो है 5, देन 5, 2, 3, 5। ओके, आई हैव एंटर 3 5s, एक 2 और एक 3। अब जब सॉर्ट होगा तो कैसे होगा, 2 3 5 5 5। तो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट का क्या प्रिंट करेगा अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक, सॉर्ट करके क्या प्रिंट करेगा? ओएस, ओएस, यस ओएस मैम। क्या प्रिंट करेगा? मैम एक बार रिपीट करोगे आप? मैंने लिस्ट में एलिमेंट्स लिए हैं, चैट विंडो में लिखती हूँ। लिस्ट में मैंने एलिमेंट्स एंटर किए, फाइव फाइव थ्री फोर फाइव वन, ठीक है। अब जब ये अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालेगा तो क्या करेगा, 1 3 4 सॉर्ट कर देगा इनको ऐसे, यस मैम। कर देगा, और क्या प्रिंट करेगा एज अ सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट? मैम क्या 4। प्रिंट, 4 करेगा? डू यू थिंक सो करेगा? क्या करते हो आप, सॉर्ट करते हो, सॉर्ट कर कर क्या लिख देते हो, ए ऑफ n-1 प्रिंट करा दो, n-2 सॉरी, है ना, ये लिख देते हो। यस। ए ऑफ n-2 पर क्या प्रेजेंट है? क्यों निकिता, क्या प्रेजेंट है? 5 5, तो क्या प्रिंट होगा? 5। 5। कैसे करें इसे सॉल्व, एनी आइडिया फ्रॉम एनीवन? मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो 4 चाहिए आंसर, आंसर 4 होना चाहिए। मैम दो वेरिएबल ले सकते हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज। एक अलग हम्म से लूप चलेगी। हम्म उसके अंदर मैम एक मैम सपोज लगा लो, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन 5 आई प्लस प्लस, एंड इफ एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन लार्ज, तो हम्म स्मॉल इज इक्वल टू लार्ज एंड लार्ज इज इक्वल टू एरे ऑफ आई। तुम थोड़ा सा लॉजिक लिख कर बेटा चैट बॉक्स में डालो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा। ओके मैम। ठीक है रोहित, यस मैम। हाँ, और कोई आइडिया किसी का? मैम अगर हम लोग इसको कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग देखें तो हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी एरे लेकर सॉल्व करते हैं तो फिर मे बी ये सॉल्व हो सकता है। क्या लेके? फ्रीक्वेंसी एरे मैम एक टेक्निक होता अच्छा, है ना, जो दो फॉर लूप को सिंगल फॉर लूप में कन्वर्ट करके कॉम्प्लेक्सिटी कम करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैम इसको सब पहले फर्स्ट लार्जेस्ट निकाल करके सॉल्व नहीं कर सकते?
और कोई आइडिया? प्रिया का आइडिया अच्छा है। और मैम एक नई एरे बना सकते हैं जिसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स 9 इंसर्ट करें हम। अच्छा, कंडीशन लगा के डुप्लीकेट एलिमेंट्स उसमें आएंगे नहीं और फिर उसमें से निकाल सकते हैं। अच्छा, डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं, ये कैसे चेक करोगे डुप्लीकेट एलिमेंट्स? वो इफ कंडीशन लगा देंगे ना मैम, इफ नॉट इन एरे। हाँ, इफ नॉट इन एरे। तो उसमें तो पाइथन बोलो बोलो, आई एग्री कि इफ नॉट एन एरे, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी वाला आइडिया ठीक था, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होगी, नो डाउट प्रिया। बट अभी अगर मुझे अभी सॉल्व करना है, इसने जो किया है सॉर्टिंग की है, क्या इस पर कोई आइडिया दे सकता है? जो अभी सॉर्टिंग की हुई है आपकी चैट बॉक्स में, जो मैंने लिस्ट प्रिंट की हुई है 1 3 4 5 5 5, इसमें मुझे सेकंड लार्जेस्ट चाहिए, क्या इसके ऊपर कोई आइडिया दे सकता है? इसको कैसे निकालेंगे? मैम फर्स्ट लार्जेस्ट निकाल के उससे कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैम फर्स्ट पहले फर्स्ट, लार्जेस्ट तो निकल गया, लास्ट पोजीशन से 5 आ हाँ, गया मुझे। अब फिर मैम एक नया लूप लगाएंगे उसमें मैम इफ कंडीशन में डाल देंगे, मतलब अगर मतलब वो एलिमेंट नहीं चाहिए जो फर्स्ट लार्जेस्ट है, मतलब ऑटोमेटिकली फिर सेकंड लार्जेस्ट प्रिंट हो जाएगा। गुड। निकिता शर्मा एंड अदर्स, व्हाट वी विल डू, आप क्या करोगे, यहाँ पर लास्ट n-1 पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसको एक लूप लगाओ जो n-1 से लेकर आपका बैकवर्ड लूप होगा, n-1 से 0 तक चलेगा। आपने अपना क्या करना है, अभी आपने जो यहाँ पर निकिता, आपने अपने इस प्रोग्राम में जहाँ सेकंड लार्जेस्ट प्रिंट कराया वहाँ पर आप एक बैकवर्ड लूप लगाओगे, n-1 से 0 तक जाएगा, एंड यू हैव टू कंपेयर योर a of n-1 with a of i को a of i-1 से कंपेयर करोगे, और अगर जहाँ दोनों इक्वल नहीं हैं वहाँ पर आकर रुक जाओ और उस वैल्यू को प्रिंट करा दो। जैसे अभी क्या होगा, i का वैल्यू जो है वो n-1 से 0 तक रन करेगी। i की वैल्यू इनिशियली क्या हुई, n-1, n-1 का मतलब हुआ 5, एंड i-1 से कंपेयर होगी यानी कि n-2, n-2 की वैल्यू क्या है 5, 5 के इक्वल है, लूप को कंटिन्यू कर दो। देन वी गो 5 n-1, i की वैल्यू क्या हुई i-1, i-1 क्या है n-2, n-2 को n-3 से कंपेयर किया, 5 से कंपेयर हुआ, फिर से इक्वल हैं दोनों, लूप को कंटिन्यू किया, फिर आप अगेन प्रिंट कराओ i-2, i-2 को कंपेयर करेंगे i-3 से, तो क्या वैल्यू आएगी 5 4 से कंपेयर हुआ, दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, तो सिंपली प्रिंट करा दो i-1 को। आया नहीं कितना समझ? थर्ड Yes, ma'am. लार्जेस्ट हुआ तो हाँ, थर्ड लार्जेस्ट नंबर। थर्ड लार्जेस्ट नंबर हुआ तो बच्चे एक वेरिएबल और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, आप उसको सेकंड लार्जेस्ट उसमें स्टोर करो और फिर उसको आगे कंपेयर करो। आपका जो फ्रीक्वेंसी वाला आइडिया है, नो डाउट वो बहुत इजीली इम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल के सॉल्यूशन के लिए ये एक सॉल्यूशन था, ठीक है। आपके फ्रीक्वेंसी वाला जो है वो अभी हम करते हैं। लेट मी ओपन निकिता, एज ऑफ नाउ इट इज क्लियर टू यू? निकिता शर्मा एंड Yes, ma'am. और बच्चे और सबको भी क्लियर है, बिकॉज ये कोड क्वेश्चन का क्वेश्चन है, यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट, यू हैव टू डू इट। सबको क्लियर है? चलो, आई मस्ट ओपन समथिंग। चलो इतने। प्रिया, जो फ्रीक्वेंसी एरे का कंसेप्ट बता रही हो वो बताओगी एक बार, कुछ एन ओवरव्यू जो तुम्हें हो, टिल द टाइम आई ओपन अ पेंट ब्रश। मैम जैसे कि एक एरे है, अगर उसमें एलिमेंट्स है हमारे 1 1 2 3 4 5, देन उसमें हम लोग मैक्सिमम फाइंड आउट करेंगे। हेयर मैक्सिमम इज 5, देयरफॉर एक हम लोग फ्रीक्वेंसी एरे लेंगे जिसका साइज होगा मैक्सिमम प्लस 1, बिकॉज, और उसके बाद जब हम लोग फ्रीक्वेंसी एरे का इंडेक्सेस जो होगा वो 0 1 2 3 4 5 तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग लूप चलाएंगे, जैसे कि अगर फर्स्ट एलिमेंट 1 मिला तो फ्रीक्वेंसी वाले एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे हम लोग उसको 1 कर देंगे, ऐसे ही करते जाएंगे। 2 मिलेगा 2 को 1 कर देंगे, 3 मिलेगा 3 को 1 कर देंगे, एंड लेट्स सपोज 3 टाइम्स 5 है तो 5 वाले पोजीशन को 1 1 1 3 टाइम्स कर देंगे तो वो 3 हो जाएगा वहाँ वैल्यू।
देन उसके बाद हम लोग लास्ट से चेक करना शुरू करेंगे कि इफ AI इज नॉट इक्वल टू 0, देन अगर 3 मिला, क्योंकि लास्ट एलिमेंट पे 3 था लास्ट इंडेक्स पे, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। फिर 0 मिलेगा, फिर उसको भी काउंट नहीं करेंगे। अगेन 0 मिलेगा, उसको भी काउंट नहीं करेंगे। फिर 1 मिलेगा, तो जहाँ पे भी 1 मिलेगा वो हमारा वो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, अब बच्चे मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आई विल एक्सप्लेन द लॉजिक। आई थिंक सो आप सबको लॉजिक वैसे क्लियर हुआ होगा जो प्रिया ने बताया है। क्लियर हुआ है बच्चे? हाँ जी। मैम एक्चुअली मैंने धनंजय, अच्छे से रोहित। समझाया नहीं है, इसलिए कम चांसेस है। ठीक है, कोई बात नहीं। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन एंड Yes, ma'am. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू अ पेंट। पेंट को मैं एक अपना बोर्ड समझकर आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है बच्चे? पेंट ब्रश दिख रहा है? मैंने एक एरे बनाया है। दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, मैंने क्या किया, मान लो ये एक एरे है। इस एरे में लिखेंगे कहाँ से? टेक्स्ट कैसे लिखूंगी? अच्छा ठीक है, ऐसे ही लिखूंगी। मान लो यहाँ पर मेरे पास एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, 6, 3, 2, 5, 5। ठीक है, अब प्लीज राइटिंग पे मत हंसना। और ये एक एरे है, मुझे इसमें से सेकंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट निकालना है। मान लो सेकंड लार्जेस्ट ही करते हैं, पहले हमें सेकंड लार्जेस्ट निकालना है। इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले ट्रेवर्स कर कर इसमें लार्जेस्ट ऑफ ऑल निकाल लेंगे। लार्जेस्ट ऑफ ऑल निकालेंगे, सिंगल फॉर लूप से निकल जाएगा लार्जेस्ट ऑफ ऑल। एम आई राइट? मैक्सिमम वैल्यू सिंगल फॉर लूप से निकल सकती है, फॉर लूप के अंदर इफ कंडीशन लगती है। हाँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा, ये बताओ मुझे कि ये जो एरे है इसमें से अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या एक सिंगल फॉर लूप के अंदर इफ लगाकर निकल सकती है? एम आई राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम प्रिया आई वांट टू लिसन अदर्स आल्सो। निकल सकती है? फॉर लूप के अंदर एक सिंगल इफ से मैक्सिमम ऑफ वैल्यू निकल सकती है। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. अब इसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है? क्या है मैक्सिमम? 6। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे जिसका साइज जो है वो 6 होगा। रिमेंबर द साइज ऑफ द एरे इज 6। सी, इसका साइज क्या है? 6 नहीं बल्कि 7 लेंगे। 6 + 1, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इंडेक्स 6 तक जाए। तो इसका साइज क्या लेंगे एक उस एरे का? 6 + 1, जो आपका मैक्सिमम एलिमेंट है उससे एक ज़्यादा। अब क्या करो, ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और वी कैन से फ्रीक्वेंसी एरे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फिर से एक और फॉर लूप लगाओ जो इसको ट्रैवर्स करेगा। अब जब इसको ट्रैवर्स कर रहे हो तो सबसे पहले क्या एलिमेंट आया? 2 आया। तो आप क्या करोगे, मान लो इस एरे का नाम है f और इस एरे का नाम है a। जब आप a को ट्रैवर्स कर रहे हो तो a ऑफ i जो है वो 2 आया, तो आपने क्या करना है, f ऑफ 2 में 1 लिख देना है। फिर आप a ऑफ 1 पे आए, a ऑफ 1 पे 3 आई वैल्यू, तो f ऑफ 3 को 1 कर देना है। फिर 5 आई,
5 को 1 कर देना है। फिर 6 आई, 6 को आपने 1 कर दिया। अब आप आ गए 3, फिर से 3 आ गया, 3 को एक इंक्रीमेंट कर दो 2, फिर 2 आ गया, 2 को एक इंक्रीमेंट कर दो 2, अब फिर से 5 आ गया, 5 को एक इंक्रीमेंट कर दो 2, फिर से 5 आ गया, एक और इंक्रीमेंट कर दो 3। इतना समझ में आया सबको? ओवैस, ओवैस यस मैम, आ गया इतना समझ में? यस मैम, आगे समझ। अब आपने चाहे थर्ड लार्जेस्ट निकालना है, चाहे सेकंड लार्जेस्ट निकालना है, चाहे फोर्थ लार्जेस्ट निकालना है, चाहे मिनिमम निकालना है, क्या आप निकाल सकते हो? क्या करोगे? लार्जेस्ट निकालना है, बैक से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करो। दिस इज योर फर्स्ट लार्जेस्ट, दिस इज योर सेकंड लार्जेस्ट, पर हमें चेक क्या करना है, इस एरे में उसके कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू 1 2 3 4 यानी कि 0 नहीं होनी चाहिए। इस एरे को पहले 0 इनिशियलाइज करा लो, 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 नहीं है, कुछ और वैल्यू है, कंपेयर कर लो, तो इट मीन्स ये सेकंड लार्जेस्ट है, ये थर्ड लार्जेस्ट है, ये फोर्थ लार्जेस्ट है। एम आई राइट? रचित, रचित यस मैम, यस मैम, आया समझ में बेटा? एम आई Yes, क्लियर और नॉट? यस मैम। सबको क्लियर है बेटा? कोई है जिसको नहीं क्लियर हो? रोहित, दोबारा बता दो मैम। धनंजय, नहीं हुआ? नहीं मैम। नहीं हुआ? शैल आई टेल यू अगेन? यस मैम। कहाँ से नहीं हुआ या कुछ भी नहीं हुआ? मैं वो जब दूसरी एरे में स्टोर करा फ्रीक्वेंसी से, फिर उसके बाद क्या हाँ, किया? ये स्टोर कराना, इसको इनिशियलाइज किया है हमने 0 से। इस एरे में हमने देखा सबसे पहले वैल्यू 2 आ रही है, वैल्यू 2 आ रही है, तो हमने जब इसकी वैल्यू देखी, इफ ए ऑफ आई इज इक्वल टू 2 या ए ऑफ आई जो भी है, जे इज इक्वल टू ए ऑफ आई लिख लो, जे इज इक्वल टू ए ऑफ आई डाल दो, ठीक है? तो आपने क्या करना है, तब जे की वैल्यू यहाँ डाल दी, एफ ऑफ जे को 1 सेट करना है। इसके बाद ये स्टेप आएगा, एम आई राइट? j इज इक्वल टू ए ऑफ आई देखा, आई के ऊपर लूप लगाओगे, i इज इक्वल टू 0 to n minus 1, j इज इक्वल टू ए ऑफ आई, f ऑफ j इज इक्वल टू 1, और इसको कर दो प्लस प्लस। यहाँ पर जो भी काउंटर, वो तो जब लॉजिक एक्चुअली लिखेंगे उसके बेस पर है। मैंने देखा कि ये 2 है तो 2 को 1 कर दिया, फिर देखा 3 है तो 3 को 1 कर दिया, फिर देखा 5 है तो 5 को 1 कर दिया, फिर देखा 6 है तो 6 को 1 कर दिया, फिर देखा 3 आया, 3 पहले से 1 था तो उसको मैंने 2 कर दिया, फिर आया 2 को पहले भी 1 था तो मैंने उसे 2 कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया एक एक। अब क्या हुआ, इस एरे में मेरे पास क्या है, corresponding to each and every value of a I have a frequency, that's why we call it frequency array। 2 कितनी टाइम्स अपीयर हो रहा है? 2 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है? 2 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है? 3 टाइम्स। 6 कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है? 1 टाइम। धनंजय, यस मैम। अब क्लियर हुआ है बेटा? नहीं हुआ? फ्रीक्वेंसी तो सेट कर दी, उसके बाद हाईएस्ट कैसे निकाल रहे हैं हम? कैसे निकालें? कैसे निकालने के लिए बेटा लूप लगाओ f के ऊपर, अब इस वाले एरे के ऊपर लूप लगाओ। उस लूप में क्या करना है आपने, लास्ट एलिमेंट जो है वो लार्जेस्ट होगा, क्योंकि हमने यहाँ से लार्जेस्ट निकाला था। n-1 पे आ जाओ, अगर n-1 की वैल्यू 0 नहीं है तो इट मीन्स ये आपकी सेकेंड लार्जेस्ट है। ठीक है, आगे समझ आ गया? यस। सबको आगे क्लियर? एनीवन जिसको नहीं आया हो? निशांत, नितिश, पीयूष, भाई कोई तो बोलो। राधिका, लविश, निशांत, आ गया? मैम फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद एक बार और बता दो। हाँ ठीक है, दैट्स द गुड थिंग आई वांट, कि यस यस आ गया नहीं करना, नहीं आया तो बताना है बेटा।
ये फ्रीक्वेंसी का पॉलीगन एरे बन गया ना, इसके बाद आपने क्या करना है, एक फॉर लूप लगाना है। उस फॉर लूप को रिवर्स फॉर लूप होगा अगर हमने लार्जेस्ट निकालना है, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट। इस फ्रीक्वेंसी एरे से बेटा आप फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड फर्स्ट स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट भी निकाल सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लार्जेस्ट भी निकाल सकते हो, सेकंड थर्ड फोर्थ लार्जेस्ट भी, स्मॉलेस्ट भी, सब कुछ निकाल सकते हो अगर रिपीटिशन हो एरे में तो। सो दिस इज द बेटर वे एक्चुअली विद द लीस्ट कॉम्प्लेक्सिटी। अभी मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बताती हूँ कैसे निकाली है। अभी ये देखो, ये लार्जेस्ट एलिमेंट है आपके एरे का, ठीक है, ये लास्ट पोजीशन पर प्रेजेंट है, ये सेकेंड लास्ट है। हमने क्या करना है, रिवर्स लूप लगाना है। रिवर्स लूप में हमने चेक करना है कि आई की पोजीशन की वैल्यू क्या है। अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं है तो वो वैल्यू से कम वाला जो है ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट हो जाएगा। अगर मान लो फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 0 होती, हमारा 5 नहीं होता, तो हम इसे छोड़ देते। इसकी वैल्यू भी 0 है, हम इसे छोड़ देते। 3 फॉर एग्जांपल, मान लो ये 5 ना होकर 3 सेकेंड लार्जेस्ट होता, तो हम क्या करते, 6 को देखते, 6 लार्जेस्ट है। फिर हम फॉर लूप है जो डिक्रीमेंट हो रहा है, ए ऑफ 5, एफ ऑफ 5 चेक होता है, एफ ऑफ 5 की वैल्यू 0 है, डिक्रीमेंट कर दो, एफ ऑफ 4 की वैल्यू 0 है, डिक्रीमेंट कर दो, एफ ऑफ 3 की वैल्यू 2 है, तो इट मीन्स दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, तो हम 3 को प्रिंट कर देते हैं। आपको करना क्या है, एफ ऑफ एरे को ट्रैवर्स करना होगा रिवर्स ऑर्डर में, एंड यू हैव टू चेक द वैल्यू वेदर इट हैज़ 0 और नॉट। अगर 0 नहीं है तो बस सेकेंड पोजीशन पर आपको अपना सेकेंड लार्जेस्ट मिल जाएगा, अदरवाइज थर्ड पर मिल जाएगा। लूप पर लेना वहीं तक ही है, फ्रिक्वेंसी बना देगा ये, बट 0 की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। ओवैस, इज इट ओके नाउ? यस मैम। एनीवन एल्स? हाँ जी, अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख लें एक बार। लेट्स सी इट्स कॉम्प्लेक्सिटी अगेन। अब देखो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे, ये एरे जब मैंने मैक्सिमम निकालना था तो ट्रैवर्स किया 1 टाइम। एक बार ट्रैवर्स करने में एक सिंगल फॉर लूप लगा, कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई, ऑर्डर ऑफ n। एम आई राइट धनंजय, एम आई राइट? यस मैम। एक सिंगल फॉर लूप है तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हुई। यस मैम। फिर हमने क्या किया, ये एरे क्रिएट किया, एक कांस्टेंट है, एक जो भी वैल्यू होगी कांस्टेंट होगा, तो मान लो ये प्लस ऑर्डर ऑफ 6 का मान लो हमने एरे बनाया, मैं एक रैंडम वैल्यू c ले लेती हूँ, प्लस ऑर्डर ऑफ c। अब इसको भी क्या करेंगे, फिर से ट्रैवर्स कर रहे हैं इस एरे को। इसके अंदर नेस्टेड फॉर लूप तो नहीं है, अलग से फॉर लूप लग रहा है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, ऑर्डर ऑफ n। प्लस में जाएगी, नेस्टेड फॉर लूप नहीं है तो प्लस में जाएगी ना। यस मैम। अब इससे फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज इसमें डाल रहे हैं, उसी फॉर लूप के अंदर डाल रहे हैं, इसको ट्रैवर्स कर रहे हैं और इसमें वैल्यूज डाल रहे हैं, और फिर हम इसको ट्रैवर्स कर रहे हैं। क्या आएगी कॉम्प्लेक्सिटी इस इक्वेशन से, ऑर्डर ऑफ n। ऑर्डर ऑफ n ही आएगी ना। और अगर हम कोई भी सॉर्टिंग मेथड लगाते हैं, लीस्ट कॉम्प्लेक्सिटी जो मर्ज सॉर्ट की और क्विक सॉर्ट की होती है, वो क्या होती है, n log होती है बेटा, n log n होती है। मर्ज सॉर्ट क्विक सॉर्ट की लीस्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, n log n। तो अगर कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक n स्क्वायर होती है, n स्क्वायर बड़ी होती है, n log n स्मॉलर होती है। सो हमारे पास लीस्ट कॉम्प्लेक्सिटी फॉर एनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज n log n। अब n log n और n को कंपेयर करें तो n स्मॉलर है, सो टू फाइंड आउट द सेकेंड लार्जेस्ट, द लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, इनके लिए जो टेक्निक यूज़ करनी है, अगर ये टेक्निक यूज़ करोगे, दिस इज द लीस्ट कॉम्प्लेक्स वन। That's why we told you about the complexity. Complexity is an important term in this respect, that we have to make the algorithm which have a least complexity. Am I clear to all? Yes, please. ईशान, ईशान, ईशान कुमार कौन है भाई? ईशान,
हाँ जी, क्लियर हुआ है ईशान? Yes, sir. लविश, लविश, ठीक है बच्चे, I have uploaded 2 questions on your Google Classroom. Moreover, I have some questions on your code quotient also. I make you visible my code quotient account. See, this is your code quotient account. There you have the complexity of the programs, introduction of arrays, some multiple questions, like one question with the multiple solutions here on arrays, multiple choice questions. Leave the linear search, don't do that. And 3 coding questions. Find the second maximum in array, which we have already discussed in the class right now. Cut the sticks and maximum frequency in a sequence. We have to find out the maximum frequency in the sequence. That you can also find out the same way I have told you the frequency array you have to find out. So these 3 coding questions you have to done by this week along with these all. There are single questions. This is a one question, multiple choice questions. So this all you have to done plus 2 coding questions I have uploaded on your code quotient. Oh, sorry, 2 questions I have uploaded on your Google Classroom. 2 are pending from yesterday's class and 2 I have uploaded today. The due date for these questions would be tomorrow 12 p.m. The same you have to do that, you have to submit the snapshots of the questions you are doing on your platform. Any doubts? आज की ड्यू डेट जब कंप्लीट हो जाएगी बेटा क्वेश्चन की, टुमारो वी विल डिस्कस दीज 2 क्वेश्चंस इन द क्लास जो मैंने आपको एज एन असाइनमेंट दिए थे. ओके मैम वो आपकी स्लाइड में फिबोनाची का क्वेश्चन था जो कॉम्प्लेक्सिटी का, वो नहीं हाँ, समझ आया था हमें. फिबोनाची की कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है बेटा, मैं कल इसको डिस्कस करूंगी फिर से. और जो 2 क्वेश्चंस मैंने उस पर दिए थे गूगल क्लासरूम में वो भी डिस्कस करेंगे. I will show any one of yours answer in the class also. Okay? Yes, ma'am. Okay, then take a leave from the class and do your code quotient as well as your Google Classroom. Okay? Okay, take care. Have a good day. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Ma'am gone. It's okay. Too tough question. Too tough, yes, too tough. ਹੋਰ ਫਿਰ ਸਮਝਣ ਚ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ. ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਜੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ. फ्रीक्वेंसी घटाती हो, एक बार पल्ले ही नहीं मेरे की करना. ਓਏ ਦੀਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ. ਡੀਜੇ ਡੀਜੇ ਛੱਡ ਗਿਆ. ਡੀਜੇ ਛੱਡ ਗਈ. फिर जैसी पहुंच गया सीएस पे. ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨੀਚੇ. ਗੱਡ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ. खेलना है ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? एस. ਇਸ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚ ਆ ਗਿਆ ਓਏ. हाँ, स्टार 1 पे सीगा. ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ. ਪਲੈਟੀਨਮ 2 ਡਿਮੋਟ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਏਸ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਾ ਵੇਖੀ ਜਲਦੀ. ਮੈਂ ਤਾਂ पैराशूट ਪਲੈਟੀਨਮ मिल गया सी तेनों जोशी होए. ਹੈ. पैराशूट मिल गया सी 5 मैच वाला. ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਹੋਇਆ, ਰਾਤੀ ਇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ. ਮੇਰੇ 30-40 ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸੀ ਫਿਰ. अच्छा. ਉਹ ਲੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਰਹਿ ਗਏ. ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਵੀ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ. यार लिविंग का घंटा मैच. ਸਾਲੇ ਆਪਾਂ 3 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਵੇਲੇ ਆ.